एवरीवन, दिस इज़ मी चारू सिंह और वंस अगेन मैं आई हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ जिसमें मैं करने वाली हूँ चेक इन आज फतेहगढ़ पैलेस रिजॉर्ट में। यस, सो वी आर इन उदयपुर एंड मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ये टूर ले सकें एंड डिसाइड कर सकें विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन उदयपुर. So this is one of the heritage property. It's a 5-star property to stay in Udaipur. And इस property तक जाने के लिए it took us 5 to 10 minutes to enter in the property. And तब तक हमने सारे नज़ारे लिए, वीडियो शूट की. And now we are at the property. And skipping the reception, we are just going directly to the second floor because अपना जो room है that's on second floor. So we are going directly to the room and all the check-in formalities we'll do it later because we have some luggage and we have a small baby as well. So they have allowed us to enter into the property before check-in and काफ़ी सारे व्यू पॉइंट मैंने नोटिस किए यहाँ पे that I'm keeping in my mind. If you are planning to do a pre-wedding shoot or any function or any wedding related to any festival related reception party or anything that you are planning, so this is the best place for you. Entry करने के बाद we got the welcome drink जो कि rose flavored. Welcome drink के बाद we are at the corridor front of our room, so we are just checking out the area, the surroundings of our room. So it's very nice, it's very hygienic and clean, and I could see the staff is still doing the cleaning part. So they do 2 rounds of cleaning, one in the morning and evening. And pictures लेने के लिए, photo shoot के लिए यहाँ पे बहुत सारा points है. So this is our door, this is our room. So they have actually upgraded our room to 1 category above. So this was very nice of them. And फतेहगढ़ का staff इतना polite और इतना अच्छा था that they were very supportive in any manner. Hospitality wise, I would give them 9 out of 10. So you could imagine कि कितना ज़्यादा hygienic and clean रखते हैं ये place को. So this we had a very great view of the washroom and everything. So now I'm going to show you. I'm going to give you my room tour. So this is the 3rd category room that they have provided with the balcony view and jacuzzi. So as I have already informed you that हम लोग को second category का room दिया था, but they have upgraded by just asking once. So this is very nice of them. So इतना अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डाइनिंग एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल है. और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, लगेज पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है अच्छे से. यू कैन कीप योर लगेज, शूज़ एंड एवरीथिंग. So this table you can keep all your your makeup items or anything. And when I entered, I see a huge bedroom. So there is one more dressing table that they have provided, and this dressing table looks like a very ancient. So they have used a very ancient kind of teak wood furniture. So this is a very expensive teak wood that comes in the category of wood. And this is the bed they have provided, gives us a royal feeling. And मतलब काफ़ी अच्छा रूम था एंड इतना सूथिंग वाइब आ रहा था यहाँ से. एंड दिस इज़ आवर कर्टेन व्यू फ्रॉम द बालकनी. एंड बालकनी एक चीज़ अच्छी थी, बालकनी इज़ नॉट ओपन. So I liked it because if we want we can open these doors also, glass door. But to sit and to avoid mosquitoes and those bugs, so it's very good. It was covered, so in the morning you can keep it open. And यहाँ का view, यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है that you itself you can have. And top पे अगर आप देखेंगे that on high hills, that is also a tourist place on the high point, which we have already covered from our room. So you'll see in the front there is a one more property of Fateh. So that is a Fateh Niwas property which also belongs to the Fateh. So यहाँ पे फतेह का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है. एंड यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा लेक पार्ट भी विजिबल होता है. सो दिस इज़ आवर रूम एंड आई वुड गिव 9 out of 10. रूम इतना क्लीनलीनेस है, कर्टन्स इतना अच्छा है. एंड इफ़ यू वांट टू avoid any sunlight or if you want shade, it's very nice curtain. and यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है. एंड स्टाफ ने हमें दिखाया कि कैसे यहाँ पे
पूरा जो फतेह का प्रॉपर्टी है, जो रॉयल फैमिली है, दोज फैमिली स्टेज इन देयर ओन प्रॉपर्टी, सो दैट्स देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कि मैंने बाद में विज़िट किया था. सो दैट्स वेरी नाइस व्यू फ्रॉम देयर एज वेल. एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा जूम करके, तो यहाँ से एक लेक का जो कि पिचोला लेक है, उसका थोड़ा सा बैक साइड हमको देखने को मिलता है. सो आई वुड से इससे अच्छा व्यू तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी और रूम का है. दो देयर आर फ्यू रूम्स ऑन द अपर फ्लोर, बट आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट वन. एंड यहाँ पे लिफ्ट भी है अगर आप लिफ्ट से आना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट टू हैव अ व्यू entirely, because they have kept some monuments when you go through the stairs, so it's very nice. तो ये था हमारा रूम टूर. एंड देन विल चेक द वॉशरूम्स कि वॉशरूम कितना है, बिकॉज वॉशरूम का हाइजीन बहुत मैटर करता है मेरे लिए, एंड आई थिंक आई एम श्योर आप सबके लिए. सो आई वुड सी वॉशरूम इज़ वेरी ड्राई, क्लीन एंड हाइजीनिक. कुछ भी यहाँ पे स्लिपरी नहीं था, एंड टॉवल्स वेल मेंटेन था. जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे शैम्पू सोप एंड वो दिया था, काफ़ी अच्छे से अरेंज किया था. टॉवल्स वो वेरी क्लीन, बिकॉज आई फर्स्ट थिंग आई डू इज़ टू चेक द टॉवल्स कैसा है, एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन यूज़. एंड यहाँ पे शावर एरिया भी दिया गया है, ग्लास कवर शावर एरिया. आई थिंक यहाँ पे यू कैन टेक दिस स्टीम ऑल्सो इफ़ यू आर वेरी कीन टू टेक दिस स्टीम. एंड मैं यहाँ पे सेल्फी लेते हुए, मिरर काफ़ी क्लीन था, जो कि मेरे काम की चीज़ है. जकूज़ी काफ़ी अच्छा था. सो द ओनली थिंग दे हैव अपग्रेडेड आवर रूम टू इज़ द जकूज़ी, बिकॉज द सेकेंड कैटेगरी का रूम दैट वी हैड it was not having jacuzzi, so that they have given us based on the availability. So when you go and check into the Fatehgarh property, I suggest you to please ask them if they can upgrade your room as per the availability. इतना अच्छा cupboards and सब कुछ दिया गया है that you can keep your luggage and your belonging items very nicely. And बहुत अच्छा space दिया गया है. यहाँ का staff बहुत friendly and बहुत अच्छा है. Just in front of our room, when we go out, they have given this beautiful swimming pool, and evening it looks so amazing and soothing. You will see this side we have the room. This is the small bar. We have a little bit here सिटिंग एरिया इन फ्रंट ऑफ पूल. एंड पूल से इतना ब्यूटीफुल व्यू आता है, यू कांट इवन इमेजिन. इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये, दैट आई वुड से कि अब तक का हमारा बेस्ट प्रॉपर्टी है. दो वी हैड अदर 5-star प्रॉपर्टीज ऑल्सो, वी हैड स्टे एंड वी हैड एक्सपीरियंस, बट दिस वॉज द बेस्ट एंड अमेजिंग. जो ग्रीनरी और यहाँ से जो भी हमें विलेजेस का व्यू दिखाई देता है, वो बहुत ही अमेजिंग सूथिंग है, बिकॉज सिटी में यू विल गेट टू सी ओनली बिल्डिंग्स एंड ऑल. एंड इसके साथ साथ मी एंड माई हस्बैंड एंड अवर स्मॉल किड आफ्टर चेंजिंग in the evening during the sunset, so we came outside and we enjoyed. We have taken lot of photo shoots and videos. So अगर बजट की बात करें तो ये प्रॉपर्टी इतना भी बजट फ्रेंडली नहीं है, बट आई वुड स्टिल से as per their luxury and the facilities that they have provided, and the kind of hospitality and the staff service, the kind of service they have provides, I would say it worth it. And आपको वर्थ तभी लगता है when you are spending your money at the right place and you'll get the deserving kind of experience. So I would say it's worth it. And off season में you'll get it on good cheaper price. Cheaper I would say minimum 15,000 I would say. And हमारे रूम से इतना प्यारा सनसेट का व्यू दिखाई दे रहा था इवनिंग में. So can you imagine, in the evening we don't have to go outside anywhere to to explore the Udaipur. From only at one point and at this height from the होटल itself we were getting so nice view. तो बाहर देखने में इतना अच्छा लग रहा था that we don't want to go anywhere else. So it's worth it. And अपना जो first day था, we were already late and it's evening, so we decided to stay in the property and just explore the property, this entire resort, because ये resort इतना बड़ा है that if you want to take a tour it will take you entirely 2 days. सो ये जो मेरा व्लॉग शूट हुआ है, ये एक दिन का शूट नहीं है, ये 2 और 3 डेज़ का शूट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. इतना प्यारा यहाँ से प्रॉपर्टीज़ का व्यू दिखाई देता है दोनों साइड से. एंड पूल का इवनिंग में मज़ा लेते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, लेट्स जस्ट
चिल इन द स्विमिंग पूल एंड बेबी हमारे साथ ही था. ही वॉज इन द स्ट्रॉलर एंड ही वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग एंड ही वॉज टेकिंग द व्यू. एंड इतना प्यारा, इतना अच्छा अगर आपको प्रॉपर्टी मिलता है दैट यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स. एंड सेम हमारे साथ भी यही हुआ कि प्रॉपर्टी का मज़ा लेते लेते हमें पता ही नहीं चला, हमारे 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे. एंड देन वी हैड प्लान टू गो समवेयर आउट. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग चल दिए थे ब्रेकफास्ट की तरफ. एंड ब्रेकफास्ट रूम में जब हम गए तो यहाँ पे हमने देखा जो अंकल थे ये इतनी अच्छी फ्लूट बजा रहे थे, इतना, एंड ये ब्यूटीफुल साउंड के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया. इतना इतना अच्छा लग रहा था, लाइक सब कुछ इतना अच्छा अच्छा फीलिंग दे रहा था. लाइक ये अंकल इतने प्यार से, मैंने उन अंकल से बाद में बात भी की कि आप कब तक ये फ्लूट बजाएंगे. तो उन्होंने मुझे बताया जब तक आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक मैं फ्लूट बजाता ही रहूँगा, जब तक गेस्ट आएंगे मैं फ्लूट बजाता रहूँगा. इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी देखने के बाद यहाँ पे जो मैनेजर था हमारे फूड काउंटर के लिए वो भी बहुत अच्छा था. ही वॉज सर्विंग अस अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, आई वुड से, इंस्टेंट फूड. एंड फूड वॉज वेरी अमेजिंग. बाद में मैंने इन अंकल को, फ्लूट वाले अंकल को भी मना किया कि आप रहने दीजिए, अभी फ्लूट मत बजाइए. एंड हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंजॉय किया. एंड इतना अच्छा यहाँ पे वाइब था, लाइक कॉरिडोर्स एंड एवरीथिंग. मतलब मन कर रहा था कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम शूट नहीं कर सकते. इतना ज़्यादा हमने वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स लिया. उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा था कि कितनी चीज़ें हैं अभी कवर्ड करने के लिए. सो इट वाज़ वेरी नाइस. कितना अच्छा लगता है जब आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी मिलती है जहाँ पे आपको स्टे करना इस गिव्स यू हैप्पीनेस इंस्टेड गोइंग आउट. सो एज आई हैव मैंशन कि अगर आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कराने आ रहे हैं या फिर कोई वेडिंग प्लान कर रहे हैं, कोई भी संगीत सेरेमनी कुछ भी प्लान कर रहे हैं फेस्टिव वाइब लेने के लिए और इन्जॉय करने के लिए विद योर लव्ड वंस, सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे. आई चेंज द टायर एंड वी आर इन द एथनिक अगेन. एंड ये है स्काई व्यू पार्ट. सो जो कि द बेस्ट पार्ट था फॉर फोटो शूट एंड फोटोग्राफ्स, जो कि हिडन जेम्स में आता है. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि यहाँ पे आप फ़ोटोशूट ज़रूर कराएं. एंड उसके नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 5 o'clock एंड around 6 o'clock I decided to get a property view alone. So I came out, मैं बाहर गई, मैंने बाहर का नज़ारा देखा. एंड this is very amazing to see outside very early morning. तो सिटी में कैसा होता है कि हम लोग इतना लेट उठते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बाहर का वेदर कैसा है बाहर का. सो टू टेक अ व्यू ऑफ दिस फतेहगढ़ मेरे को लगा 10-15 मिनट्स, जो कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे 10-15 मिनट्स कहाँ चले गए. एंड वॉकिंग करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्पेस था यहाँ पे. एंड थोड़ा सा आगे की तरफ जब मैं गई तो यहाँ पे मुझे फतेहगढ़ ओनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी पता चला. तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी अगर इफ़ दे आर अलाउइंग मी टू सी तो मैं वहाँ का भी नज़ारा लूँगी. एंड मैं बहुत कीन थी बिकॉज व्हेन आई वाज गेटिंग द व्यू फ्रॉम माय रूम ऑफ देयर ओनर्स, तो इनकी प्रॉपर्टी का व्यू लेना चाह रही थी मैं. एंड वो मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ नेक्स्ट डे. सो विद देयर परमिशन आई डिसाइडेड टू गो एंड एंटर इनटू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, जो कि मैंने बाहर से चेक किया. एक्चुअली दे हैव taken the same theme of the property. So Fatehgarh and their own property had the same theme, color and structure. So it looks like it's the part of the property but it's not, it's their own. And उन्होंने वहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है that it's a private property and though they don't allow people to enter into their private property. And काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर आप रास्ता देखेंगे ना कैसा ऊंचा नीचा रास्ता है, जैसे पहाड़ों में होता है ना वैसे ही है यहाँ पे भी. इतना वॉक करने के बाद मुझे यहाँ पे और भी हिडन जेम्स मिला जो कि हमने मिस कर दिया था फ़ोटोशूट के लिए. तो वो हिडन जेम्स था ये. तो यहाँ पे और भी सारे प्लेसेस थे जहाँ पे हम फ़ोटोशूट कर सकते थे बट वी मिस्ड इट. एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो ऑल दीज प्लेसेस. यहाँ पे एक और सनसेट पॉइंट था जो कि थोड़ा हाइट पे जाके था. दैट हैज़ अ डिफरेंट बिल्डिंग एंड डिफरेंट टेरेस. तो वो भी काफ़ी अमेजिंग था. और अगर हम फ़ोटोशूट नहीं कर पाए फिर भी मैंने व्लॉग बना लिया. एंड दिस इज़ देयर एंट्रेंस गेट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो दिस इज़ नॉट द सेकेंड फ्लोर दैट वेयर वी हैव entered in the first day. So this is the reception area which we skipped on the first day. So यहाँ से काफ़ी स्टेयर्स चढ़ लेने के बाद
रिसेप्शन एरिया आता है। एंड इफ़ यूल सी ना, स्टेयर्स से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट टू नॉट गो इन द एलिवेटर्स और लिफ्ट। प्लीज़ यूज़ दीज स्टेयर्स, बिकॉज यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा मॉन्यूमेंट्स रखा हुआ है जो आपको दिखेगा। एंड माया इज़ द नेम ऑफ देयर रिसेप्शन एंड देयर शोरूम ऑल्सो, वेयर दे आर सेलिंग देयर एंटिक पीस। तो यहाँ से when you go through, so you'll see all those ancient things that they have bought. So मैंने चेक किया रिसेप्शन से कि ये सब मॉन्यूमेंट्स कहाँ से आए हैं, ये एंशियंट पीसेस कहाँ से आए हैं। सो शी टेल मी दैट जो ओनर है, दैट ओनर ब्रदर्स आर वेरी कीन टू बाय दोज एंशियंट थिंग्स। जैसे महाराष्ट्र में और कहीं भी जब प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुआ है, पुराना प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ से दीज बिलोंगिंग्स दे हैव बॉट। एंड यहाँ पे उन्होंने उसको प्लेस किया है फॉर अस पीपल टू गेट अ लुक एंड व्यू। आज का व्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।